الحمد لله صلى على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين یا فتاح یا فتاح یا فتاح. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ویلکم ٹو قرآنک بیسک گرامر کورس بائی نور ہدایت بیچ 2. آپ سب کا خوش آمدید ہے. لیکچر نمبر 10 ہے. ہمارے آج کے ٹاپک ہے اسماء اشارہ اور اسم اشارہ بطور مبتدا. الحمدللہ اللہ کی توفیق و برکت سے ہمارا جملہ اسمیہ سٹارٹ ہو چکا ہے. جملہ اسمیہ کسے کہتے ہیں؟ اسم سے شروع ہونے والے جملے کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں. جملہ اسمیہ کے اجزاء، جملہ اسمیہ کے دو میجر کمپوننٹس ہیں. اس کے دو میجر جن پر وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں، جن سے جملہ اسمیہ کنسٹرکٹ ہوتا ہے، وہ دو اجزاء ہیں: مبتدا سبجیکٹ اور خبر پریڈیکیٹ. مبتدا حالت رفع میں ہوتا ہے اور معرفہ ہوتا ہے، جبکہ خبر حالت رفع میں ہوتی ہے اور یہ نکرہ. جنس اور خبر میں ان میں مطابقت پائی جاتی ہے. مبتدا اور خبر کے قواعد. جملہ اسمیہ کی کنسٹرکشن کے لیے مبتدا اور خبر کے کچھ رولز بنائے گئے ہیں. ان رولز کو ہم دیکھ لیتے ہیں کہ وہ کیا ہیں. تو یہ چارٹ ہم نے لاسٹ کلاس میں بھی کیا تھا. اس وقت میں پھر آپ کے ساتھ ایک دفعہ شیئر کر سکتی ہوں. مبتدا اور خبر، کیونکہ ہمارا جملہ اسمیہ چل رہا ہے، تو جب ہم نے کہا اسم کی جب بھی اسم کی ہم بات کریں گے تو ہم اسم کے لیے جو ہے اس کی چار چیزوں کو ہمیں اس کا جاننا ضروری ہے. اس کے ٹھیک ہے، وہ چار چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے ہمیں کسی بھی اسم کی جنس، جینڈر کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے. وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. ٹھیک ہے، پھر وہ اس کا عدد معلوم ہونا چاہیے، اس کا نمبر یعنی واحد ہے، مثنیٰ ہے، جمع ہے. پھر اس کا وسعت یعنی اس کی کیپیسٹی، اور لاسٹ میں اس کا اعراب یعنی اس کا اسٹیٹس. اب جب ہم مبتدا اور خبر کی بات کر رہے ہیں، کیونکہ ہم جملہ اسمیہ کی بات کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے مبتدا ہے وہ بھی اسم ہوگا اور خبر بھی کوئی اسم ہوگی. تو جب کوئی اسم مبتدا بنے گا تو ہمیں سب سے پہلے اس کی جنس دیکھنی ہے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث. اسی طرح ہم خبر کو بھی دیکھیں گے کہ خبر مذکر ہے یا مؤنث. یہاں اس بات کو یاد رکھیے گا کہ مبتدا اور خبر میں جنس کے اسپیکٹ میں کمپیٹیبلٹی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، مطابقت ہوتی ہے، یعنی جو جنس مبتدا کی ہوگی وہی خبر کی ہوگی. آگے ہے عدد. اگر مبتدا واحد، مثنیٰ یا جمع ہے تو خبر بھی اس کے مطابق ہوگی، واحد، مثنیٰ یا جمع. تو یہاں بھی یہی رول اپلائی ہوگا کہ مبتدا اور خبر میں کمپیٹیبلٹی ہوگی. ٹھیک، تو جنس اور عدد میں تو مطابقت ہوگی مبتدا اور خبر میں. آگے دیکھیے وسعت. اب مبتدا کی وسعت ہے معرفہ اور خبر کی وسعت عموماً نکرہ. تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ مبتدا آپ کا معرفہ ہونا چاہیے اور خبر نکرہ سے ہونا چاہیے. اس کے بعد اعراب. مبتدا کا اعراب اور خبر کا اعراب یہ دونوں مرفوع ہوں گے، حالت رفع میں ہونا چاہیے. تو یہ مبتدا اور خبر کے قواعد ہیں. پچھلے ٹاپک میں ہم نے اسم علم کو بطور مبتدا
लिया था, यानी मुब्तदा इसम की जगह हमने इसम अलम रखे थे और उनके साथ खबर लगाई थी। ठीक है, इस बार हम जो है इसम इशारा का इस्तेमाल करें। जब हमने वसत का चैप्टर पढ़ा था तो हमने वहाँ मार्फा के अक़साम पढ़े थे। इसम अलम प्रॉपर नेम, इसम इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, इसम ज़मीर प्रोनाउन, इसम मौसूल रिलेटिव प्रोनाउन, और मौरिफ बिलाम इसम नाउन विद डेफिनेट आर्टिकल। इसम अलम, इसको हमने बतौर मुब्तदा इस्तेमाल किया था क्योंकि ये मार्फा होते हैं। अब यहाँ एक बात याद रखिएगा, ये आपके सामने जो मार्फा की 5 अक़साम हमने पढ़नी है, ये 5 अक़साम जो है आपको मुब्तदा बनकर मिल सकती हैं। आप इनको मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसम अलम का हमने इस्तेमाल सीखा था। आज हम इसम इशारा को एज ए मुब्तदा यूज करेंगे और जुमला इस्मिया बनाएंगे। इसम इशारा डिमॉन्स्ट्रेटिव नाउन, ऐसा इसम जो किसी शख्स चीज की तरफ इशारा करे। इसम इशारा, ऐसा इसम इशारा, ऐसा इसम जो इशारा करने के लिए इस्तेमाल हो, इसम इशारा कहलाता है। जिस लफ्ज से किसी जानदार या बेजान चीज की तरफ इशारा करते हैं, इसम इशारा कहलाता है। जैसे हम जब उर्दू में बात करते हैं तो हम इशारा करने के लिए ये और वो का इस्तेमाल करते हैं। अब जब उर्दू में बात की जाती है तो वहाँ वाहिद और जमा के लिए यही इशारा इस्तेमाल किए जाते हैं, ये और वो। वाहिद इसम होगा, यानी वाहिद के लिए भी हम यही इस्तेमाल करेंगे और जमा के लिए भी यही इस्तेमाल। जब हम इंग्लिश में देखते हैं तो हम वहां पर दिस एंड दैट का यूज करते हैं, और दिस एंड दैट वाहिद के लिए आते हैं, जबकि जमा के लिए, प्लूरल के लिए हम यूज करते हैं दीज एंड दोज। लेकिन क्योंकि हम अब अरबी की स्टडी कर रहे हैं, हम अरबी जुबान पढ़ रहे हैं, तो अरबी जुबान में हमें, क्योंकि अदद 3 तरह से मिलता है, वाहिद, मुसन्ना और जमा, तो इसी हिसाब से इसम इशारा अरबी जुबान में मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए भी अलग है, और वाहिद, मुसन्ना और जमा के अदद के लिए अलग अलग अस्माए इशारा है। फिर जैसे इंग्लिश में करीब के लिए दिस है और उर्दू में ये है, और दूर के लिए इंग्लिश में दैट है और उर्दू में वो है, तो इसी तरह अरबी में भी आपको करीब और दूर के लिए अलग अलग इशारे मिले। यानी अरबी में हम मुज़क्कर के लिए करीब और दूर का अलग इशारा इस्तेमाल करेंगे, और वो अदद के लिहाज से भी हमें मिलेगा। वाहिद के लिए अलग इशारा होगा, मुसन्ना के लिए अलग और जमा के लिए। इसी तरह जब हम मोनस को देखेंगे तो मोनस के लिए करीब और दूर का अलग इशारा होगा, जो कि उसी तरह वाहिद, मुसन्ना और जमा के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, और अदद के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि हमें मुज़क्कर और मोनस के लिए करीब और दूर के अलग अलग इशारे। तो इसके लिए सबसे पहले हम चार्ट को पढ़ेंगे। ठीक है, इसके पॉइंट्स कंप्लीट कर लेते हैं। इसम इशारा के बाद अगर कोई नकरा इसम आए, जुमला इस्मिया बनता है। आपको इसम इशारा, जब भी कोई नकरा इसम मिलेगा तो वो जुमला इस्मिया मिलेगा। इसम इशारा मुब्तदा बन जाएगा और वो नकरा इसम खबर। अब इसम इशारा क्योंकि मारफा इसम है तो ये मुब्तदा बन सकता है। अस्मा इशारा मबनी होते हैं, वाहिद और जमा के अस्मा इशारा मबनी होते हैं। आप इसका एक चार्ट मुसफ़ के लेक्चर में पढ़ चुके हैं, आज हम उस चार्ट को एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इसम इशारा पोजीशन के हिसाब से 2 तरह से है, करीब और दूर के। इसमें जेंडर की भी प्लस अलग अलग होगी, वाहिद, मुसन्ना और जमा। तो हम इनको देखें। इशारा करीब मुज़क्कर के लिए, पहले देखेंगे वाहिद के लिए। हाजा, ये,
जब हमें किसी वाहिद मुज़क्कर के लिए उसकी तरफ इशारा करना है तो हम इशारा इस्तेमाल करेंगे हाजा। मुसन्ना के लिए हाजानी, ये दोनों। जमा के लिए हाउलाई, ये सब। अब मुअन्नस के लिए देखिए, वाहिद मुअन्नस के लिए हम कौन सा इशारा लाएंगे? हाजिही, ये। मुसन्ना के लिए हातानी, ये दोनों। हाउलाई, ये सब। अब यहाँ देखिए कितनी इंटरेस्टिंग चीज है कि मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए जब हमें जमा का इशारा लेकर आना है तो वो एक ही इशारा है, सेम इशारा इस्तेमाल होगा, हाउलाई। ये हमें याद करने में भी आसान होगा। अब हम इशारा बईद, दूर के लिए देख लेते हैं। पहले हम मुज़क्कर के लिए देखेंगे कि जब हमें मुज़क्कर हमसे डिस्टेंस पर है तो वाहिद मुज़क्कर के लिए कौन सा इशारा लेकर आएंगे? ज़ालिका, वो। मुसन्ना के लिए ज़ानिका, वो दोनों। उलाइका, वो सब। अब मुअन्नस के लिए देखिए, तिलका, वो। जब वाहिद मुअन्नस होगी हमसे डिस्टेंस पर तो उसको हम इशारा तिलका से करेंगे। तानिका, वो दोनों। उलाइका, वो सब। देखिए यहाँ भी जब जमा की बात आई तो मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए सेम इशारा यूज हुआ, उलाइका। मैंने क्योंकि आपको मेंशन किया, ये अस्माए इशारा है, यानी इसम है। अब अगर मैं सिर्फ हाजा को ले लूं आपके सामने, और क्योंकि मैं कह रही हूँ ये इसम इशारा है, तो इसम के बारे में हमें जो चार चीजें मालूम होनी चाहिए, ठीक है? उसकी जिन्स, उसका अदद, उसकी वुसअत, और उसका एराब। अब इसकी जिन्स, ये वाहिद है, तो सॉरी जिन्स इसकी अ, मुज़क्कर है, अदद वाहिद है, ये दो चीजें होती हैं। अब इसकी वुसअत क्या है? तो इसम इशारा मारफा होते हैं, ठीक। अब एराब रह गया पीछे। तो यहाँ इस बात को याद रखिएगा कि ये चार्ट जो आपके सामने आ रहा है ये मरफू अस्माए इशारा है। ये अस्माए इशारा जो आपके सामने आ रहे हैं, ये चार्ट पूरा मरफू है। अब हम ये मरफू चार्ट क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि जुमला इसमिया में मुब्तदा की रिक्वायरमेंट है कि वो रफा हो और मरफू हो, हालत रफा में हो। तो अब हमें याद रखना है कि इन अस्मा इशारा का एराब रफा है, ये मरफू अस्मा इशारा है, ठीक है? नस्ब और जर के भी होंगे, वो हम आगे जाके इंशाल्लाह स्टडी करेंगे, लेकिन अभी हमारा फोकस, क्योंकि हम मुब्तदा के तौर पर इसको इस्तेमाल करना चाह रहे हैं, तो हमारा फोकस मरफू अस्मा इशारा पर होना चाहिए। इनको मैं एक फ्लो में आपके साथ पढ़ देती हूँ आपके सामने। हाजा, हाजानी, हाउलाई। हाजिही, हातानी, हाउलाई, इशारा बईद। दालिका, दानिका, उलाइका। मोनस तिलका, तानिका, उलाइका। जब हमने उस सब का लेक्चर किया था तो तब आपने इनको अच्छे से इनकी लर्निंग की थी। अब हम आगे चलते हैं। यहाँ एक पॉइंट याद रखने के लिए है कि करीब के अस्मा इशारा दो चश्मी हे से शुरू होते हैं और दूर के अस्मा इशारा काफ पर खत्म होते हैं। ये लर्निंग टिप है। ये छोटी छोटी टिप्स जो है हमें चीजों को याद रखने में हेल्प करती हैं। अब मैं एक एग्जांपल से इसको आपको एक्सप्लेन करती हूँ। उर्दू से अरबी तर्जुमा करेंगे, ठीक है? तो हमारे पास जुमला क्या आ गया? ये मुसलमान है। अब यहाँ मैंने मुज़क्कर इसलिए मेंशन किया कि अब हम मुज़क्कर के हिसाब से भी बात करेंगे सारी। सबसे पहले हम इस जुमले में मुब्तदा और खबर को आइडेंटिफाई कर लेंगे। ये मुब्तदा और मुसलमान है खबर। अब हम मुसलमान है खबर को पहले देखते हैं कि खबर की जिन्स जेंडर क्या है। ये मुज़क्कर है, तो अब ऑब्वियसली जो ये इशारा आएगा यहाँ पर ये भी मुज़क्कर मेल का हो, ठीक। इसके बाद हम इसका अदद देखेंगे। खबर वाहिद है, सिंगुलर है, और अब जो इशारा हम इसके लिए लेकर आएंगे वो भी हमें
सिंगुलर लेकर आना है, वाहिद लेकर आना है। क्यों? क्योंकि मुब्तदा और खबर में, जिन्स और अदद में मुताबिकत होती है, कंपेटिबिलिटी होती है। ये दो रूल यहाँ पर हम इसको अप्लाई करेंगे। अब ये हमें देखना है कि हमारे चार्ट में वाहिद मुजक्कर के लिए करीब का इशारा कौन सा आएगा। तो ये आएगा हमारे पास हाजा। तो ये हम इशारा ले आते हैं, हाजा मुसलमान। इसकी अरबी है मुस्लिमुन। तो ये हो गया मुस्लिमुन। अब हाजा, इसकी वुसअत क्या है, इसकी कैपेसिटी क्या है? ये मार्कस प्रोनाउन। और मुस्लिमुन ये नकरा इसम है। देखिए उसके आखिर में आपको तनवीन मिल रही है, कॉमन नाउन है। अब हम एराब देखते हैं। क्योंकि ये अस्मा इशारा का चार्ट मरफू है, तो फिर डेफिनेटली जो हाजा है ये हालत रफा में है। और मुस्लिमुन, इसके आखिर में आपको दम्मातैन मिल रही है, तो ये भी हालत रफा में है। अब हम अपने पूरा जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाजा मुस्लिमुन। अब हाजा आपका यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है और मुस्लिमुन इसकी खबर है। तो यहाँ आप नोट कीजिए कि आपने हाजा आप खबर के हिसाब से लेकर आए थे कि ये वाहिद है और मुज़क्कर के लिए आता है। अभी जब हमने हाजा को देखा तो हाजा एक मार्फा इसम था और हालत रफा में था। और इसी तरह मुस्लिमुन जो हमारी खबर है वो नकरा है और हालत रफा में। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब भी आपको इसम इशारा के बाद नकरा इसम मिलेगा तो वो आपका जुमला इस्मिया होगा। तो माशाल्लाह से अब आपने देखिए पहले जुमले में इसम इशारा को बतौर मुब्तदा यूज किया। आगे चलते हैं। ये मुसलमान है। अब हम यहाँ पे सारी वर्किंग मोनस के हिसाब से करेंगे, फीमेल के हिसाब से करेंगे। खबर और मुब्तदा आइडेंटिफाई करेंगे। ये मुब्तदा मुसलमान है खबर। अब हम खबर को देखेंगे कि खबर की जिन्स क्या है। जैसे हमने मेंशन की है, ये मोनस है, फीमेल। तो हमारा जो इशारा आएगा ना वो भी मोनस के लिए। खबर का नंबर क्या है, उसका अदद क्या है। तो खबर जो है हमारी वाहिद है, तो फिर इशारा भी हमारा वाहिद का है बस। तो यहाँ हमने अपने इस रूल को पूरा करना है। ये मुब्तदा और खबर में जिन्स और अदद में मुताबिकत होनी चाहिए। ठीक। अब हम चार्ट में देखेंगे वाहिद मुन्नस के लिए करीब का कौन सा इशारा आएगा। तो वो है हाज़िही। तो हम ले आएंगे हाज़िही मुसलमान। मुन्नस के लिए क्या आता है? मुस्लिमतुन। तो ये देखिए मुस्लिमतुन वाहिद है और मुन्नस से सम आ गया आपके सामने। अब हम हाज़िही का इसकी वुसअत देखेंगे। इसकी वुसअत क्या है? ये मारफा है और आपकी खबर मुस्लिमतुन जो है ये नकरा इसम है क्योंकि इसका एंड तनवीन पर होगा, दम्मा तैन है। इसम इशारा की उसका एराब या उसका स्टेटस क्या होगा? ये रफा में है और आपकी खबर भी यहाँ पे मुस्लिमतुन रफा में। तो अब हम अपना जुमला कंस्ट्रक्ट करेंगे। हाज़िही मुस्लिमतुन। हाज़िही मुब्तदा, मुस्लिमतुन खबर। तो अब हमने मुब्तदा और खबर के रूल्स को सामने रखते हुए अपना जुमला कंस्ट्रक्ट किया कि हाजा आपका मार्फा इसम है और हालत रफा में है और मुस्लिमातुन नकरा इसम है और हालत रफा में है। जिन्स और अदद में इनमें मुताबिकत भी पाई जाती है। तो ये हमारा जुमला इसमें तैयार हो गया। बस पॉइंट क्या याद रखना है आपको कि आपको जब भी इसम इशारा के बाद नकरा इसम मिलेगा तो आपका जुमला इसमिया है। और इसम इशारा क्योंकि मारफा है, मरफू है, तो ये मुब्तदा के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। आगे एक छोटा सा चार्ट है, इसमें हम जो है दूर और करीब के इशारों से थोड़ी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम मुज़क्कर यानी मेल के लिए प्रैक्टिस करेंगे। तो ये हमने एक बना लिया था, ये मुसलमान है, हाजा मुस्लिमुन। ये दोनों मुसलमान हैं। अब मुब्तदा खबर क्या है? मुब्तदा ये दोनों मुसलमान है खबर है।
अब हमारी खबर का जिन्स है मुज़क्कर, अदद है मुसन्ना, तो हमें इशारा भी उसी हिसाब से लेकर आना है। तो दोनों मुसलमान, इन ये इसकी अरबी क्या हम पहले बना लेते हैं कि मुस्लिमुन से मुस्लिमानी, और इशारा कौन सा लाएंगे तो हम अपने चार्ट को देखेंगे, और चार्ट में मुसन्ना मुज़क्कर के लिए आएगा करीब का इशारा हाजानी। हम अपना जुमला बनाएंगे हाजानी मुस्लिमानी। अब हाजानी को देखिए, ये मार्फा इसम है, हालत रफा में है, और यहाँ मुब्तदा बन रहा है, और मुस्लिमानी नकरा इसम है, हालत रफा में है, तो ये खबर है। मुस्लिमानी की आनी की साउंड हमें बता रही है कि ये हालत रफा में है, क्योंकि हमने यही सीखा ना कि इसम जब हालत मुसन उसका आदत मुसन्ना होगा तो उसकी हालत रफा आनी की साउंड के साथ है। ये सब मुसलमान हैं, मुब्तदा ये, सब मुसलमान हैं, खबर है। अब खबर की जिन्स और अदद तो हम देख लेते हैं कि जिन्स मुज़क्कर है और अदद जमा में चला गया है। तो अब हम जो इशारा है वो भी मुज़क्कर जमा के लिए लेकर आएंगे। अपने अस्मा इशारा के चार्ट पर अगर हम नज़र डालते हैं तो हम देखते हैं कि जमा के लिए, जमा मुज़क्कर के लिए हा उलाई का इसम इशारा आएगा, और मुसलमान की जमा क्या होगी, यानी मुस्लिमुन की जमा क्या बनेगी, मुस्लिमूना, जमा सालिम मुज़क्कर बनेगी हाउलाई मुस्लिमूना। हाउलाई मुब्तदा, मुस्लिमूना खबर है, मुस्लिमूना हालत रफा में है, नकरा ऐसा है। जमा में हमें ऊना की साउंड बताती है, किसी भी इसम की जमा सालिम में जो ऊना की साउंड है वो हमें उसकी एराब बताती है कि ये हालत रफा में है। वो मुसलमान है, अब यहाँ दूर का इशारा आ गया वो, ये मुब्तदा है, मुसलमान है खबर है। तो वाहिद है हमारा जो खबर है वो मुज़क्कर है और वाहिद है, तो इशारा भी हम जो है वाहिद मुज़क्कर का लेके आएंगे दूर का, तो वो क्या है ज़ालिका। ज़ालिका मुस्लिमुन, ज़ालिका मुब्तदा, मुस्लिमुन खबर, वो दोनों मुसलमान हैं। अब खबर मुसन्ना में चली गई है, तो हमारा इसम इशारा भी मुसन्ना मुज़क्कर के लिए आएगा, वो क्या है दानिका, और मुस्लिमुन से उसकी मुसन्ना हो जाएगी मुस्लिमानी, दानिका मुस्लिमानी, वो सब मुसलमान हैं। खबर जमा में चली गई है तो इशारा भी जमा का आएगा, तो जमा मुज़क्कर का दूर का इशारा है उलाइका, और मुस्लिमुन से जमा हो जाएगी मुस्लिमूना, उलाइका मुस्लिमूना। तो इन जुमलों में भी देखिए आप कि ज़ालिका हमारा मुब्तदा और मुस्लिम खबर है। इसी तरह जब हम मुसन्ना का जुमला हमारे सामने आया तो ज़ानिका, ये हमारा जो है मुब्तदा है, और मुस्लिमानी इसकी खबर है। इसी तरह जमा में उलाइका, ये इसम इशारा हमारा यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है, और उसके आगे नकरा खबर आ रही है मुस्लिमूना। अब हम मोनस से प्रैक्टिस कर लेते हैं। इसी तरह हमने पहला जुमला बना लिया था इसका, ये मुसलमान है, हाज़िही मुस्लिमातुन, हाज़िही मुब्तदा, मुस्लिमातुन खबर, ये दोनों मुसलमान हैं। अब हमारी खबर मुसन्ना में चली गई है, और हम क्योंकि मोनस का चार्ट कर रहे हैं तो हम मुसन्ना मोनस के लिए करीब का इशारा देखेंगे, तो वो है हातानी, और मुस्लिमातुन की मुसन्ना बनेगी मुस्लिमातानी। हम बनाएंगे हातानी मुस्लिमातानी, हातानी मुब्तदा है और मुस्लिमातानी नकरा खबर है। मोनस में आप तानी की साउंड से याद रखिएगा कि ये मुसन्ना है और ये हालत रफा में है। ये सब मुसलमान है। अब खबर जमा में चली गई है, तो जमा मोनस के लिए कौन सा इसमें इशारा आएगा करीब का, हा उलाई, ये जमा और मोनस दोनों के लिए सेम है, तो हा उलाई मुस्लिमातुन, मुस्लिमातुन की जमा सालिम बनेगी मुस्लिमातुन, और आतुन की साउंड हमें बता रही है कि ये हालत रफा में है। वो मुसलमान है, दूर का इशारा आ गया, वो मुब्तदा, मुसलमान है खबर। तो हम अब मोनस वाहिद के लिए दूर का इशारा देखेंगे, कौन सा है चार्ट में, तिल का, और
मुसलमान है की अरबी मुस्लिमातुन, क्योंकि मोहन्नस की बात चल रही है। तिल का मुस्लिमातुन, तिल का मुब्तदा, मुस्लिमातुन खबर। वो दोनों मुसलमान हैं। अब हमारी खबर मुसन्ना में चली गई, तो खबर देखते हैं। हम इशारा भी उसी हिसाब से मुसन्ना का लेकर आएंगे। ठीक, तो नूर का मुसन्ना मुजक्कर का इशारा क्या है? मुसन्ना मोन्नस के लिए हम क्या इशारा लेकर आएंगे? तानी का। और मुस्लिमा तुन से मुसन्ना बन जाएगी मुस्लिमा तानी, तानी का मुस्लिमा तानी। वो सब मुसलमान हैं। अब खबर जमा के अदद में चली गई है, तो जमा मोनस के लिए हम लेकर आएंगे उलाइका। और उलाइका को हमने जमा मुजक्कर के लिए भी इस्तेमाल किया था। मुस्लिमातुन से जमा बन जाएगी मुस्लिमातुन, उलाइका मुस्लिमातुन, उलाइका इसम इशारा। और ये यहाँ पर मुब्तदा बन रहा है और मुस्लिमातुन खबर है। आपने अब इन दोनों चार्ट में सीखा कि हम इसम इशारा को कैसे मुब्तदा बना सकते हैं, और इसके बाद हम खबर को लेकर आएंगे। खबर नकरा होगी और हालत रफा में होगी, और इसी तरह अदद और जिन्स में मुब्तदा और खबर में मुताबिकत होगी, कंपेटेबिलिटी होगी। तो आई होप कि आपने इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से पिक कर लिया होगा। आगे हम अपने स्टूडेंट्स के साथ इसकी प्रैक्टिस करते हैं इंशाल्लाह। तो आप लोग अपने हैंड रेज कीजिए और फिर हम वन बाय वन आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। सबसे पहले आ जाइए गुजाला बीबी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अच्छा गुजाला जी, सबसे मुझे पहले आप ये बताइए, सबसे पहला आपसे सवाल है, अस्मा इशारा इनकी वुसअत क्या है? कैपेसिटी, मार्फा या नकरा? मारफा। ठीक, इनका एराब क्या है? रफा, नसब या जर? मर ये रफा। बिल्कुल रफा है। अस्मा इशारा हालत रफा में मरफू है। ठीक, ओके। चार्ट आपके सामने है, मैं आपके साथ हूँ। वोकेबलरी मैं आपको बताती जाऊंगी, जहां आपको नहीं आएगी तो इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, पहला सेंटेंस, जी। ये तालिब इल्म है। अब आप मुझे सबसे पहले इसमें मुब्तदा और खबर बताइए। ये मुब्तदा है ये, हम्म, और तालिब तालिब इल्म जो है वो खबर है। शाबाश। अब आप मुझे ये बताइए कि तालिब इल्म, इसका आपको, इसकी जिन्स क्या है? मुज़क्कर। गुड। और अदद? वाहिद। ठीक है। अब आप वाहिद मुजक्कर के हिसाब से ये अच्छा, सबसे पहले ये भी बताइए कि ये करीब का इशारा है या दूर का, जो ये लिखा हुआ है आपके सामने? करीब का। गुड। अब आप वाहिद मुजक्कर के लिए करीब का इशारा कौन सा लेकर आएंगे? हाजा। शाबाश। तालिब इल्म की अरबी है तालिबुन, बनाइए। हाजा तालिबुन। गुड, हाजा तालिबुन। अब आप यहाँ देखिए कि जो आपने अरबी बनाई है, क्या वो बिल्कुल ठीक है? आपकी अरबी ठीक है? बिल्कुल ठीक है। देखिए हाजा जी। अपने पूरा उस पे होता है ना कि हमें मुब्तदा मारफा चाहिए और मरफू चाहिए, तो हाजा इन दोनों चीजों को पूरा कर रहा है। ठीक है। और जी। तालिबुन जी। हालत रफा में है और इसकी वुसअत क्या है? नकरा। तो आपका पूरा नकरा। ये माशाल्लाह से तैयार है, हाजा तालिबुन। ठीक, जी। वो तालिबा है। अब आप मुझे मुब्तदा खबर हाँ, वो मुब्तदा है और तालिबा खबर है। ठीक है। अब जो आपके पास खबर है, इसकी जिन्स और अदद क्या है? ये वाहिद है और मोनस है। वाहिद और मुअन्नस है। और जो आपके पास मुब्तदा आ रहा है, उसमें आपको जो इशारा हम जो कर रहे हैं, वो करीब के लिए कर रहे हैं कि दूर का इस्तेमाल हो रहा है? दूर का। अब वाहिद मुअन्नस के लिए आप दूर का इशारा कौन सा लेकर आएंगे? तिल का तालिबातुन। शाबाश, तिल का तालिबात, वेरी गुड, एक्सीलेंट गुजारा दीदी, बारकल्लाहु फीकी। समीना जी आप आ जाइए।
म्यूट कर लें निज़ामी। समीना जी। जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी समीना जी आप देखिएगा आगे। वो डॉक्टर है। आप मुब्तदा खबर बता दीजिए पहले मुझे। वो मुब्तदा, डॉक्टर है खबर। गुड हो गया। अब डॉक्टर है जो आपकी खबर है, इसकी जिन्स और अदद क्या है? मुज़क्कर और वाहिद। अच्छा, अब आप मुझे बताइए कि आपका जो हम इशारा कर रहे हैं वो करीब का या दूर का इस्तेमाल? दूर का। दूर का। तो अब आप वाहिद मुज़क्कर के लिए दूर का। जाल हम्म। दालिका तबीबुन। तभी बुन। ठीक है। तबीब। तभी बुन। ओके। अब देखिए कि आपने जालिका का एराब क्या है रफा। और वुसत। वुसत मारफा। और तबीबुन आपकी खबर बन रही है, इसकी वुसत क्या नकीर। है? और नकीरा रफा। गुड। वुसत रफा। गुड। ये लेडी डॉक्टर है। मुब्तदा खबर बताइए। मुब्तदा ये लेडी डॉक्टर है खबर। ठीक हो गया। हा हादिही तबीबतुन। हाज़िही तबीब है। आप हाज़े ही लेकर आई हैं, क्यों? बिकॉज ये नजदीक का इशारा करीब है और मुअन्नस है इसके लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बारकल्लाहु फीकी समीना जी। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने पिक कर ली है बात। आगे कौन आएंगे मेरे साथ? सोबिया हसन आप आ जाइए शाबाश। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सोबिया देखिएगा, ये मस्जिद है। अब मुब्तदा खबर बता दूं। ये मुब्तदा है और मस्जिद जो है वो खबर है। ठीक हो। मैम ये करीब का इशारा है। हम्म। जैसे मुज़क्कर है हम्म। और अदद वाहिद है। शाबाश। अब आप इशारा कौन सा लेकर आएंगी सोबिया? मुज़क्कर है तो करीब में हाजा लगेगा। ठीक है। मस्जिद की अरबी है मस्जिदुल, बनाइए। हाजा मस्जिद। गुड हो गया। नेक्स्ट है वो मदरसा है। मैम ये दूर का इशारा है हम्म। और ये वाहिद है और मुज़क्कर के लिए। ठीक है सोबिया, जब भी हम जुमला इस्मिया पे काम करेंगे ना, तो हमें सबसे पहले चाहे हमारे पास अरबी टेक्स्ट आ जाए चाहे उर्दू, तो आपने मुब्तदा खबर को मेंशन करना है। ठीक है, अब मुझे मुब्तदा खबर बताइए। मैम वो मुब्तदा है और मदरसा है खबर। ठीक है। अब वो करीब का इशारा है या दूर का? मैम दूर का इशारा है। ठीक है, और मदरसा जो है आपका, इसकी जिन्स और अदद? मैम ये भी मुज़क्कर है और वाहिद है। मुज़क्कर है और ठीक है। जी मैम। देखिए मैम जालिका। मेरी बात सुनो। ठीक है, बनाइए। मैम मदरसे की मदरसा मदरसातुन तो होगी। हाँ, अब देखिए मैं क्या आपको अरबी बता रही हूँ, मदरसातुन। तो अब आप कैसे इशारा लेकर आएंगे, जरा सोचिए। मैम मोन्नस आएगा जी फिर। बिल्कुल कीजिए। तिल का मदरसतुन। शाबाश। ठीक है, अब पॉइंट समझ आ गया आपको? जी जी मैम समझ में आ ठीक गया। है। तो जो मदरसे की अरबी है ना, वो है मदरसातुन। तो हमने फिर इशारा, आपने देखिए कैसे उसको माशाल्लाह से फौरन पिक किया और आपने अपने ही करेक्शन कर दिया। ठीक। बारकल्लाहु फीकी सोबिया, वेरी गुड। जी माँ, ये दो कुर्सियां हैं। मुब्तदा खबर बताइए। ये ये मुब्तदा और दो कुर्सियां खबर। ओके, अब आपके पास जो खबर आ रही है, इसकी जिन्स और अदद बताइए। ये मुज़क्कर मुज़क्कर है और मुसन्ना है। हाँ, अदद मुसन्ना है। ठीक है। अब जी अदद जो आपके पास मुब्तदा आ रहा है, वो इशारा करीब का है या दूर का? करीब का है। शाबाश। अब मुझे ये बताइए कि जो आपके ये कुर्सियां हैं, इसकी अरबी है कुर्सियुन, इसकी मुसन्ना बनाइए। कुर्सियानी। कुर्सियानी। तो इशारा कौन सा लेकर आएंगी मुसन्ना मुज़क्कर के लिए? हाजा हाजानी। चले बनाइए। हाजानी कुर्सियानी। ठीक है, हाजानी कुर्सी यानी। शाबाश। एक और फिर, वो सूरज है।
جی یہ دور کا وہ مبتدا اور سورج خبر اور شاپ یہ بعید ہے، دور کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. آپ کا جو سورج ہے اس کی جنس اور عدد کیا ہے؟ جنس یہ سمائی مؤنث ہے یہ. جی بالکل بالکل شاباش. آگے جی تو یہ ہاں زانی کا آئے گا نا میم. دیکھیں اب وہ سورج ہے تو ایک ہے نا سورج تو جی ہماری تو مؤنث کے لیے تل کیا کا لے آئے گا، کر آئیں تل گے؟ کا تل کا. ٹھیک ہے کیجیے جی پڑھیے. تل کا شمسن. ٹھیک ہے. چل جی بارک تل کا اللہ. شمسن. ویری گڈ. جی جزاک اللہ. آگے آ جائیے زیبا جی آپ آ جائیے. جی میم السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی زیبا جی یہاں یہ پوائنٹ نوٹ کیجیے گا کہ غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ واحد مؤنث استعمال ہوتا ہے. اب غیر عاقل کیا ہے؟ عاقل دیکھیے انسان جن اور فرشتے عاقل ہیں. عاقل عقل سے نکلا ہے، عقل رکھتے ہیں، شعور رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. اور غیر عاقل کیا ہے؟ اس میں جانور اور باقی تمام اشیاء جو نان لیونگ چیزیں ہیں وہ سب آ جائیں گی. تو اس کی اگزامپل ہے یہ گھر ہیں. اب گھر ہیں، گھر یہ جمع میں بات جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور گھر جو ہے اس کی واحد ہے بیتن اور اس کی جمع ہو جائے گی بیوتن. اب میرے ساتھ کون ہے؟ جی زیبا جی جی میم میں نے آپ کو بتا دیا کہ بیوتن جمع ہے اور یہ گھر جو ہے غیر عاقل چیز ہے. ٹھیک ہے. تو آپ اشارہ کون یس سا لے میم. کر آئیں گے اس کے ساتھ؟ واحد اشارہ مؤنث کا حاضی بیوتن، یہ گھر ہے. یہ گھر ہیں. ٹھیک ہے. حاضی بیوتن. اب آپ کو بات یاد رہے گی. ٹھیک ہے. جب بھی یس آپ کے سامنے غیر عاقل چیز آئے گی تو جو اس کے لیے آپ اشارہ لے کر آئیں گی غیر عاقل کی جمع کے لیے اشارہ کیا آئے گا؟ آپ کا واحد مؤنث. واحد مؤنث. ٹھیک ہے. یس. آگے دیکھیے سب سے پہلے آپ کے پاس جملہ ہے یہ دروازہ ہے. مبتدا خبر بتائیے. یہ مبتدا ہے، دروازہ ہے، خبر ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ہوگا دروازہ حاضل بابو. دروازے کے جنس مذک- عدد کیا ہے؟ واحد ہے، مذکر ہے. ٹھیک ہے. تو اب آپ اور اشارہ کون سا لے کر آئیں گے؟ واحد مذکر کا. ٹھیک ہے. تو دروازے کی عربی ہے بابن. بنائیے. حاضہ بابن. اب آپ کے سامنے ہے یہ دو دروازے ہیں. اب آپ کی جو یہ ہوگا ہاں خبر کس میں چلے گی عدد میں؟ حاضانی. یہ حاضانی بابانی، یہ اس میں مبتدا ہے، دو دروازے ہے، یہ خبر ہے. آزانی بابانی. بابن سے مثنیٰ کیا بن گئی؟ بابانی. بابانی. آگے دیکھیے یہ دروازے ہیں. اب آپ کا جو مجھے بتائیے مبتدا اور خبر بتائیں. جی میم یہاں پر مبتدا یہ رہیں گا، دروازے ہے یہ خبر رہیں گی. اور چونکہ یہ غیر عاقل کی جمع ہے تو اس لیے یہاں پر واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے. اور حاضی با بیوتن. بیتن تو گھر کی جمع ہے نا. اب وابن. ٹھیک ہے. ہاں بابو کی جمع حاضی اب ابوابن. ٹھیک ہے. حاضی ابوابن. ویری گڈ. بارک اللہ فیک. آگے آ جائیے لائبہ آپ آ جائیے. السلام علیکم وعلیکم ورحمۃ اللہ السلام. وبرکاتہ. وہ گاڑی ہے. لائبہ مبتدا خبر بتائیے. جی وہ مبتدا ہے اور گاڑی ہے، خبر ہے اس کی. گاڑی کی جنس اور عدد کیا ہے لائبہ؟ جی یہ واحد ہے اور مذکر ہے. دیکھیے گاڑی کی جو عربی ہوتی ہے نا وہ ہے سیارتن. ٹھیک ہے. تو یہ اچھا جی یہ مؤنث ہو جائے گی. مؤنث ہے. جی میں مؤنث ہے. علامتی مؤنث میں چلی جائے گی. ٹھیک ہے. جی اللہ کے مؤنث میں. اوکے. اب جو جی آپ کے پاس
خبر آ گئی، وہ علامتی مونس میں آ گئی، مونس آ گئی اور واحد آ گئی، تو اشارہ آپ کا قریب کا ہے یا دور کا مبتدا میں جو آ رہا ہے؟ جی دور ہے، ٹھیک ہے، دور کون کا سا میم۔ اشارہ لے کر آئیں گی؟ جی شریف مونس میں آئے گا تو ہوں، وہ گاڑی ہے تلک سیارتن۔ شاباش شاباش، آپ دیکھیے وہ دو گاڑیاں ہیں، اب خبر کا جنس اور عدد کیا ہو گیا؟ جی مثنیٰ ہو گیا دو کا۔ بالکل، اب آپ بنائیے، دور کا اشارہ لگائیں اور بنائیے سیارتن سے سیارہ تانی، ٹھیک ہے، بنائیے آپ۔ جی تانی کا سیارتانی۔ شاباش، اب دیکھیے وہ گاڑیاں ہیں، اب جمع کا ہو گیا تو جمع میں چلے اولائکا۔ گی بات، جی چلیں، جی کیا آئے گا؟ اولائکا، دیکھیں گاڑی اولائکا سیار۔ اوپر جی آپ کے میم۔ سامنے رول لکھا ہوا ہے لائبہ، پہلے رول سمجھیے کیا لکھا ہے میں نے ریڈ باکس میں؟ میم جی وہ مبتدا ہے، گاڑیاں اس کی خبر ہے، اور دیکھیں جی غیر میم۔ عاقل کی جمع آ رہی ہے نا خبر میں ہمارے پاس، ٹھیک ہے، جس کی طرف اشارہ جی کر رہے ہیں میم وہ غیر عاقل ہے، تو اب جمع میں بات چلے گی، تو جب جمع غیر عاقل آئے گی تو آپ اشارہ کیا لے کر آئیں گی؟ واحد مؤنث کا، وہ اشارہ ٹھیک ہے، ہے۔ جی میم۔ چاہے دور کی بات ہوگی چاہے قریب کی، اشارہ کون سا آئے گا؟ واحد مؤنث کا، تو اب آپ دور کی ہم بات کر رہے ہیں، تو کون سا اشارہ لے کر آئیں گی؟ واحد مؤنث کا۔ کون سا اشارہ ہے بتائیے دور کے لیے؟ تلک سیارتن، اس کی جمع کیا بنے گی؟ سیاراتن۔ شاباش، بنائیے اب پورا، تلک سیاراتن۔ شاباش، ٹھیک ہے، اب آپ کو یہ یاد رہے گا نا پوائنٹ، تو جب بھی آپ کے سامنے جی جمع غیر عاقل آئے تو آپ جو اس کے لیے اشارہ لے کر آئیں گے وہ واحد مؤنث کا لے کر آئیں گے۔ بارک اللہ فیکی، ویری گڈ لائبہ، اب آ جائیے لائبہ کے بعد صبا، آپ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ ہاں، آپ نے مبتدا اور خبر کی پہچان کرنی ہے اور اردو میں ترجمہ کرنا ہے، ٹھیک ہے، اب تھوڑا سا پیٹرن چینج ہو گیا ہمارا، ہاذہی اوکے ناقۃن، ٹھیک ہے، اب مبتدا ہاذہی، بتائیے۔ اوکے ہاذہی مبتدا ہے اور ناقاتن ہماری خبر ہے۔ ٹھیک ہو گیا، ہاذہی قریب کا اشارہ ہے یا دور کا؟ قریب کا اشارہ ہے اور واحد مؤنث ہے۔ گڈ، ویری گڈ، کیونکہ آپ کی خبر کیا ہے؟ مؤنث ہے اس لیے اشارہ بھی ہمارا مؤنث کا ہے، جی، اور اور خبر بھی جو عدد واحد ہے اس کا۔ شاباش، ویری گڈ، ناقۃن کہتے ہیں اونٹنی کو، تو اونٹنی، ٹرانسلیشن جی کیجیے۔ یہ ایک اونٹنی ہے۔ شاباش، آپ نے ایک اونٹنی کیوں کہا؟ کیونکہ نکرا ہے نا ہماری خبر، تو پھر ہم اس لیے۔ ویری گڈ، ایکسیلنٹ، ماشاء اللہ، اوکے صبا، ایک اور کیجیے آپ، جی تل کا آیاتن، اوکے، تل کا آیاتن، تل کا مبتدا ہے اور آیاتن ہماری خبر ہے، اور خبر جو ہے وہ ہماری غیر عاقل ہے، اس لیے ہمارا اشارہ واحد مؤنث کا آیا ہوا ہے۔ شاباش، وہ اچھا، آیاتن کو نشانیاں یا آیات، وہ نشانیاں نشانی ہیں۔ ایسے کر لیجیے ابھی ٹرانسلیشن، اوکے، وہ نشانیاں ہیں۔ ٹھیک ہے، یا یہ نشانیاں ہیں، اچھا، یہاں پر ایک رول یاد رکھیے گا کہ عرب میں جب بھی کسی چیز کو امپورٹینس دینی ہوتی ہے نا تو وہ اس جی کے جی لیے دور کا اشارہ استعمال کرتے ہیں، بے شک وہ اس کے قریب ہو، ٹھیک ہے، آپ کے ان کے قریب کوئی شخص یا کوئی چیز ہے اور وہ اس کو امپورٹینس دینا چاہتے ہیں تو اس کے لیے دور کا اشارہ لے کر آتے ہیں، ٹھیک ہے، اوکے تو جی جیسے آپ کے سامنے آتا ہے ذالک الکتاب لا ریب، ٹھیک ہے، حالانکہ جی بات تو قرآن مجید کی ہو رہی ہے نا، تو جی جی ہے نا، جب عرب میں کسی چیز کی امپورٹینس ظاہر کرنی ہو تو اس کے لیے دور کا اشارہ لے کر آتے ہیں چاہے وہ چیز ان کے قریب ہو، ٹھیک، چلیے، جی اوکے۔ بارک فیکی، بہت اچھے ماشاء اللہ سب جی، آ جائیے نیت جی۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
جی نہیں جی دیکھیے گا، ہاذہی جی انشاءاللہ. ایمانن، حاضی جو ہے مبتدا، ایمان اس کی خبر، اور ایمان مذکر ہے تو سوری ہاں سوری، اس کو ٹھیک ہے بالکل ایمان مذکر آئے گا اس کو ہم لیکن اس کی خبر تو وہ ہے ایک میں آپ مؤنث بھی ہے. ایک کریکشن کرتے ہیں اس کی، رکیے گا. ہم اس کو ایمان کیونکہ ہمارا مذکر ہے نا، تو اب جی آپ جی، دوبارہ سے پڑھیے گا اس کو. لہذا ایمان، تو اس کی ہم نے جو اس میں اشارہ لگائیں گے وہ بھی واحد مذکر کا ہی آئے گا. تو حاذا ایمان، یہ ایمان ہے، ایمان نام ہوگا کسی کا. نہیں نہیں نہیں، ایمان آپ کا جو فیس، ٹھیک ہے، فیس، اچھا آپ کا کہیں گے اردو میں فیتھ، اچھا اچھا ہاں اچھا اچھا، عقیدہ. عقیدہ، good، بالکل اچھا یہ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو ایمان اچھا اچھا، ہمارا مذکر اسم ہے. چلیے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، ہاں یہ ایمان ہے. ہاں جی چلیے. اور ایک اور کر دیجیے. جی، اولائکا جو ہے یہ پورا جملہ آپ ایک جو ہے منٹ، جمع. پہلے آپ پورا جملہ پڑھیں گی پھر مجھے مبتدا اور خبر بتائیں گے، ٹھیک اچھا جی ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اولائکا خاسرون، ہے. اولائکا مبتدا، خاسرون اس کی خبر ہے، ہوں اور خاسرون جمع ہے اور مذکر ہے، تو ہوں اس کے حساب سے جمع کے لیے اور مؤنث کے لیے اور مذکر ٹھیک ہے کے لیے، دونوں ہاں کے لیے اولائکا دور کا اشارہ ہے آئے گا، ہوں یعنی وہ خسارہ پانے والے ہیں. بالکل نہیں، وہ خسارہ پانے والے ہیں. ہاں وہ جی ہیں، خسارہ پانے والے ہیں یا وہ نقصان اٹھانے والے ہیں، تو پانے والے. دونوں طرح سے کر سکتی ہیں. اچھا اگر مجھے اس کا واحد کیا بنے گا جملہ؟ اولائکا جو ہے اس کا جو سنگل ہوگا وہ ذالکا، اور خاسرون خاسرون آئے گا. ہاں تو کیا ہو جائے گا پورا؟ ذالکا خاسرون. ذالک ویری بارک اللہ فیکم. آگے آ جائیے جزاک. ملائکہ، آپ آ جائیے. جی میم. جی ہاذہی جہنم، مبتدا خبر بتائیں. میم حاضی مبتدا ہے اور جہنم اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، آپ مجھے بتائیے جہنم اس کے ساتھ حاذہی کیوں آیا ہے؟ میم کیونکہ یہ سمائی مونس ہے نا جہنم، تو پھر ٹھیک ہے، ہمارے اور حاذہی آپ کا قریب کا اشارہ ہے یا دور کا؟ قریب کا. چلیں شاباش. تو ٹرانسلیشن کریں. حاضی جہنم، یہ جہنم ہے. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیکی، ویری گڈ. اب نورین جی آپ آ جائیے. جی میں جی کیجیے گا، پڑھیے. ہاذہی سبیل. حاضی سبیل. حاضی مبتدا ہے، سبیل اس کی خبر ہے. سبیل کیا کہتے ہیں؟ راستے کو. راستے کو. ہوں حاضی سبیل، یہ ایک راستہ ہے. اچھا یہاں آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ جو سبیلن ہے نا، یہ ایسا اسم ہے جو ہم مذکر اور مؤنث دونوں طرح سے استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک، ٹھیک بارک اللہ ٹھیک ہے. فیک. آگے آ جائیے. اور زرینہ جی آپ آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام علیکم. جی زرینہ جی. ہاذہی دنیا، مبتدا خبر بتائیں. جی مبتدا حاضی ہی ہے، دنیا خبر ہے. گڈ. ٹرانسلیشن کرتے ہیں. حاضہی قریب کا اشارہ ہے یا دور کا؟ قریب کا اشارہ ہے. اور اگر مجھے یہاں دور کا لے کر آنا ہو تو میں کون سا لے کر آؤں گی زرینہ دل جی؟ کا. تیل کا دل. چلے حاضہی کے ساتھ ٹرانسلیشن کیجیے. یہ دنیا ہے. جی دنیا ہے. بارک اللہ فیکی، ویری گڈ. رضیہ جی آپ کا مائک آن ہو گیا تو آ جائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. ھذا صراط. جی مبتدا خبر بتائیں. مبتدا صراط میں اس کی خبر، یہ راستہ ہے. ٹھیک ہے. ھذا قریب کا اشارہ ہے یا دور کا؟ ھذا قریب کا اشارہ ہے. ٹھیک ہے. چلیں تو ٹرانسلیشن پڑھیے دوبارہ سے ٹھیک سے. یہ ایک راستہ ہے. ٹھیک ہے.
नकरा इसम आ रहा है ना, तो हम उसकी जी ट्रांसलेशन वैसे ही करेंगे। चलो कोई, अच्छा आप एक और कर दीजिए अब आप। देखिए, खबर की मुनासबत से इसम इशारा बईद लगाएं। मैंने आपको खबर दे दी है, ठीक है। ताइबूना, तौबा करने वाले। रजिया जी हैं ना आप साथ? जी जी। जी। अब इसके साथ आप कौन सा इशारा लेकर आएंगी? बईद यानी दूर का लगा लें। उला उलाइका ताइबूना, ठीक है, तो ट्रांसलेशन क्या करेंगे हम? वो सब तौबा करने वाले। बिल्कुल, बारकल्लाहु फीकी। मैं आपको आएंगे इसके जी, ईमान आ जाइए। जी मैम। जी, आपको मैंने खबर दी है ताजिरुन, ताजिर। इसके साथ आप कौन सा इशारा बईद लेकर आएंगी? ताजिरुन बैद। देखिए, इसके आपने क्या करना है कि आपने जब खबर आपको मैंने दे दी है, तो आपने उसकी जिन्स और जी अदद को देखते हुए लेकर आना है इशारा, ठीक है? जी, ये लेकर, मुजक्कर है ना मैम? जी बिल्कुल। जी, जालिका आएगा। ठीक है, ओके। आगे है, ये आप ही कर दीजिए कंप्लीट। साबिरातुन, इसकी अदद। साबिरतुन मुसन्ना। हम्म ये मुअन्नस है मैम, हम्म साबिरतुन। और अदद। अदद वाहिद है। ठीक है, और ये तिल का लगेगा मैम यहाँ बनाइए पूरा विधान। इशारा। तिल का तिल का साबिरतुन। ठीक है, अगला देखिए, मसाजिदू। अच्छा, ये जहन में हम्म, रखिएगा, मसाजिदू जमा है मस्जिदों की, और ये गैर मुनसरिफ है, जी ठीक है। इस बात को आपको जी चेक है पास, कि मसाजिदू जमा जो है ना, ये गैर मुनसरिफ है। जी। तो हाउलाई। हमने अभी पीछे एक रूल क्या पढ़ा? गैर अकील की जमा। अच्छा, गैर अकील तो हम्म हाँ, हाँ लगेगा। दूर का लगाएंगे ना, दिल का जी मसाज, जी ठीक है। चलें, जी अब इन जो फाइनल इनके जुमले बने हैं, इनको एक बार पढ़ लीजिए, उलाई का ताइबूना से लेके नीचे तक, उर्दू तर्जुमा और दोनों पढ़ें। जी। उला उलाइका ताइबूना, वो सब तौबा करने वाले हैं। हम्म ज़ालिका ताजिरुन, वो ताजिर है। तिलका सौबिरतुन, वो सबर करने वाली है। तिलका मसाजिदु, वो मस्जिद है। ठीक है, बारकल्लाहु फीकी। आज हमने क्या सीखा? आज हमने अस्मा इशारा का चार्ट समझा है। हमने देखा कि अस्मा इशारा मार्फा है और उनका एराब मरफू है। मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए वाहिद, मुसन्ना, जमा के अदद के हिसाब से अलग अलग इशारे पढ़े और समझे हैं। फिर हमने अस्मा इशारा को मुब्तदा की जगह पर इस्तेमाल करके मुख्तलिफ जुमलों की प्रैक्टिस भी की है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।